ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સીઝ ફાયર થઈ ચૂક્યું છે। યુદ્ધ વિરામના સમાચાર મળ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ એકાએક દેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધી ચર્ચામાં જોવા મળી રહ્યા છે। કેટલાક લોકો આ સીઝ ફાયરને માસ્ટર સ્ટ્રોક ગણાવી રહ્યા છે, તો કેટલાક લોકો આ સીઝ ફાયર સામે સવાલો પણ ઉઠાવતા દેખાઈ રહ્યા છે। ત્યારે આ વચ્ચે કોંગ્રેસના વડગામના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપર પ્રહાર કરતા શું વાત કરી છે, વિગતે વાત કરીએ। શું તમે અમદાવાદમાં કોઈ જગ્યા લેવાનું વિચારી રહ્યા છો? શું તમને એવી જગ્યા જોઈએ છે કે ત્યાં તમારી ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ પણ થઈ શકે? તો આ સૌથી બેસ્ટ જગ્યા છે। અમદાવાદના બહેરામપુરા વિસ્તારમાં બહેરામપુરા પોલીસ ચોકીથી ભૂલાભાઈ તરફ જવાના રસ્તા ઉપર મેઇન રોડ પર એક 450 વાર પ્લોટમાં 500 વાર બાંધકામમાં એક બંગલો આવેલો છે। જી હા, આ બંગલામાં આપ હોસ્પિટલ, મિની સ્કૂલ, રેસ્ટોરન્ટ, સર્વિસ સેન્ટર, હોટલ, થિયેટર સહિતની તમામ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ છે તે કરી શકો છો અને આ ખૂબ જ સુવર્ણ તક માનવામાં આવી રહી છે। હવે આ બંગલાની વિશેષતાની વાત કરીએ તો આમાં બંગલામાં 6 બેડરૂમ આવેલા છે, 2 મોટા પહોળા હોલ આવેલા છે, સાથે જ સોલર પેનલ સાથે સજ્જ આ બંગલો છે, જેમાં નીચે આપેલા સંપર્ક નંબર ઉપર તાત્કાલિક ફોન કરીને વધુ વિગતો મેળવો અને વહેલા તે પહેલાંની સિસ્ટમ હોવાથી આજે જ આ તક ઝડપી લો। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્કાયનેટ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ફેદન। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવપૂર્ણ સ્થિતિને લઈને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે પડ્યા હતા। તેમણે બંને દેશો વચ્ચે સીઝ ફાયર કરાવી હોય તે પ્રકારની વાત પણ સોશિયલ મીડિયા ઉપર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે અને આના સંદર્ભમાં હવે રાજનીતિ ગરમાઈ ચૂકી છે। વાત કરીએ તો વડગામના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સામે કેટલાક સવાલ ઉઠાવ્યા છે। જે સવાલોમાં પહેલગામમાં આતંકી હુમલાના બનાવની બાબત હોય, સિક્યોરિટી લેબ્સને લઈને તેમણે વાત કરી છે કે પછી પુલવામામાં જે ઘટના બની છે તેને લઈને તેમણે વાત કરી છે। સાથે આટલું જ નહીં, જ્યારે પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે અને ભારત પાકિસ્તાનને હરાવવા જઈ રહ્યું છે, તે વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે પડે છે અને સમાધાન મધ્યસ્થી કરાવવા માટે દોડે છે, તેને લઈને પણ જિગ્નેશ મેવાણીએ સવાલ ઉઠાવતા શું વાત કહી છે તે સાંભળી લો। ओके, बस सीमा पर खड़े हैं और आपकी हमारी सभी की इस मुल्क की सुरक्षा का काम करते हैं। उन जवानों को, उनके मां बाप को, उन परिवारों को भी कांग्रेस पार्टी की ओर से, इस मंच की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पहलगाम में जिन जिन लोगों ने अपने स्वजन खोए, अपने परिजन खोए। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनको भी जिन मासूम बच्चों ने नूह में, पूंछ में, भारत के दूसरे कोने में, जम्मू कश्मीर में भी जिन लोगों की शहादतें हुई, उनके परिवारों को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सवाल आज ये भी होता है कि मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह और मोदी जी के रहते हुए ये पुलवामा का हमला हुआ कैसे? मोदी और अमित शाह के रहते हुए पहलगाम की ये घटना हुई क्यों? क्यों वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? हमारे गुप्तचर विभाग ने, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पहलगाम में भी सूचना दी थी और पुलवामा में भी सूचना दी थी। तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर क्या रही थी? आज पूरे बिहार को, पूरे गुजरात को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को इस बात का सवाल मोदी और अमित शाह से पूछना पड़ेगा। जवान सीना तानकर मातृभूमि के लिए खड़े रहे, वो बलिदानों के लिए तैयार रहे, और मोदी अमित शाह एसी कमरे में बैठे रहेंगे? ये किस प्रकार से चलेगा? हम लोगों को सवाल भी पूछना है। जो शिमला करार हुआ था, इंदिरा जी होती तो अमेरिका के सामने घुटने टेकने की नौबत नहीं आती। ये भी डंके की चोट पर कहना चाहते हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। अरे न्यूज चैनल के सामने बड़े बड़े डिंगे मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तब भी मार रहे थे, आज भी मार रहे हैं, और अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। मामला तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का था, मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है। अमेरिका बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? हमारी भी कोई स्वायत्ता है, हमारी भी कोई स्वतंत्रता है। शिमला करार हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका ट्वीट कर रहा है और मोदी जी कहां गायब है? सर्वदलीय बैठक में भी उनको नहीं आना, पुलवामा के मामले पर भी माफी नहीं मांगनी, पहलगाम पर भी माफी नहीं मांगनी, इस बात की भी सफाई नहीं देनी कितने लोग मरे क्यों। और इसलिए
आज सम्माननीय राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखा है और कहा है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए। हम बिहार की धरती पर से भी, इस मंच पर से भी मांग करते हैं कि मोदी जी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए और मुल्क की जनता के सामने, देश और दुनिया के सामने आपको सफाई देनी पड़ेगी। आप अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते। हिंदुस्तान ने अपने जवान खोए, बेगुनाह नागरिक खोए, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती। और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सफाई मोदी जी को देनी चाहिए और जब तक वो सफाई नहीं देंगे तब तक न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से, भारत के एक जिम्मेवार नागरिक की ओर से लगातार मोदी, अमित शाह और भारत की सरकार को सवाल पूछेंगे कि अमेरिका के सामने घुटने क्यों टिके। कुछ लोगों का यह भी कहना है, हमें भी शंका हो रही है कि क्या मोदी जी ने अमेरिका के सामने इसलिए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि उनके दोस्त गौतम अडानी का मामला वहां पर फंसा हुआ है। जो गौतम अडानी का पेच अमेरिका में फंसा है, उनके खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है, उसको कवर अप करने के लिए तो कहीं मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये भी सवाल लोगों के मन में है। मैंने एक ट्वीट किया था, आप जानते हैं बहुत से लोग शांति और अमन का अपील मोदी जी को करना चाहिए, ऐसा एक मैंने ट्वीट किया था 3 साल पहले। आसाम की पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी की, लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी की पूरी ट्रोल आर्मी नफरत और हिंसा फैलाने में लगी है। ये जो वॉर का जो माहौल है, उसका पॉलिटिकल लाभ कैसे मिले, उसके बारे में लगातार ट्वीट कर रही है। और मीडिया वाले इतने बेगैरत, इतने बेशर्म हो चुके हैं, शर्म आ रही है इनको पत्रकार कहते हुए। इतना झूठ, कराची पे कब्जा कर दिया, इस्लामाबाद, क्या लैंग्वेज है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो। इतना झूठ, सरासर झूठ फैला रहे हो। फिदायिन हमला हो गया। और जब हमारी जांच एजेंसियां कुछ नहीं कह रही है, हमारा ऑफिशियल भारत सरकार का कोई निवेदन नहीं आ रहा है, आप इतना लगातार रात दिन जो झूठ फैलाकर, मुझे लगता है कभी कभी मीडिया वाले, कुछ चैनल वाले, अखबार वाले अपना मुंह बंद रखे ना, ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है। और इन मामलों में भी इस मंच पर से मैं मांग करता हूं कि आने वाले 2-4 दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद, भारत की सरकार को, हमारे गृह मंत्रालय को, ऐसे जितने भी ट्वीट करने वाले लोग हैं, जितना भी नफरत और हिंसा और झूठ फैलाने वाले पत्रकार हैं, उन सभी की सूची तैयार करके उनको भी जेलों की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई जरूरत न रहे। आज साथियों, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं बिहार में चुनाव है तो बार बार मेरा आना होगा, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा आप तमाम बहनों को, माताओं को देखकर कि आपने उस कांग्रेस पार्टी का दामन थाना है जिसका नेतृत्व आज खड़गे साहब कर रहे हैं। आज राहुल जी, खड़गे साहब, शकील अहमद साहब, हमारे पीसीसी के चीफ, हम तमाम लोग, आप देख लीजिए, जहां पर भी दलित उत्पीड़न का मामला होता है, जहां पर भी माइनॉरिटीज, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी, दलित, कमजोर, दबे कुचले तबके के लोगों के हक और अधिकार की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर आपके साथ खड़ी रहती है। और इसीलिए मुझे आनंद है कि दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप तमाम लोगों ने और साथी मनीष पासवान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ थामा। उसके लिए तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं। लेकिन साथी मनीष को यह भी कहना चाहूंगा, मैं जिस दिन कांग्रेस पार्टी में जुड़ा, आप जानते हैं कि साथी कन्हैया और मैं एक ही दिन करीब 3-3.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन उसके पहले का जो जिग्नेश था, अम्बेडकराइट लड़ने वाला एक्टिविस्ट जिग्नेश, उसको कभी मरने नहीं दिया। तुमको भी ये करना है। जो लड़ाई सड़क पे पिछले 8-10 साल से तुम दलित आंदोलन के तौर पे करते आ रहे हो, कांग्रेस के साथ साथ, कांग्रेस के बैनर के तले, वो लड़ाई तुमको भी लड़नी पड़ेगी। यदि आप और हम संघर्ष न करें, बदलाव के लिए एक डंडा न खाए, मुकदमे न झेले, जेल में न जाए, तो संविधान बचाए की लड़ाई में हम है ही नहीं। हम फांसीवाद को समझे ही नहीं। मैं उस व्यक्ति को इस दौर में युवा मानता ही नहीं
जो अपने सीने पर या पीठ पर एक डंडा, पुलिस का डंडा खाने की तैयारी के साथ सड़क पर न उतरे। यदि इस सरकार के शासन के दौरान यदि आप सड़क पर नहीं, आप जेल में नहीं, आप पर मुकदमा नहीं, तो आप फांसीवाद के खिलाफ की इस लड़ाई में, संविधान और मुल्क को बचाने की लड़ाई में आप हो ही नहीं। और इसलिए साथी मनीष और आप तमाम लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आज जिस प्रकार की परिस्थिति से, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जितना भी हो सके अपने खून का एक एक कतरा बहाकर दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, बीएनटीज की आवाज को बुलंद करो। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर तुम्हारे साथ खड़ी है। खड़गे साहब आपके साथ खड़े हैं, सम्माननीय राहुल जी आपके साथ खड़े हैं। राहुल जी ने कहा था, लिख कर ले लो, जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। कितना भी घमंड था, मोदी का घमंड टूटा, भारत सरकार को भी जाति जनगणना करवाएंगे, ये अनाउंसमेंट करना पड़ा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप तमाम लोगों को केवल एक बात कहना चाहता हूं, विशेष तौर पे बीएनटीज, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी और दलित समाज के बहुजन साथियों को